One, please start, sir. We are. Yeah. Good evening, everyone. My name is Tafsir Ansari. I am the host for the session. Today, we all are here a Facebook awareness live session, which is going to be guided by Dr. Chandrakant Pancholi. As Dr. Chandrakant Pancholi is a senior consultant practicing in Kandivali, Borivali area, Mumbai Western suburb. So, this talk is for the general audience who has been would like to know a few things about the prostate regarding the men's health and it is a basic talk as everyone can join and know everything. So over to you, sir, Dr. Chandrakant. Hello, good evening, everyone. Myself, Dr. Chandrakant Pancholi. I am a urologist. I practice in Mumbai Western Suburban region. At the outset, I would like to thank you, my team, for giving me this opportunity to talk on prostate health in a Facebook live talk show, Men Ki Baat. Today, we are going to discuss about prostate health. We'll be starting with all the basic concepts which every male has regarding the prostate related issues, whether I will get the prostate enlargement, whether I will get prostate cancer, etc. I will be answering all the related questions regarding to prostate in this talk show. So let's begin our talk show. We will be going on a we will be going on a this talk is designed for the general public to join, so I won't be using very much medical languages in this. I'll be talking about basics which normal common people can understand. First of all, let me start with the anatomy. What is prostate and what does it do in a human body? So this is the cut section of a male lower body parts. As you can see in this model, you can see the bladder. Just below the bladder, at the neck of the bladder, there is a prostate gland. The as you can see, I'm right now pointing at the prostate gland. You can see in the cut section, you can see the two lobes of the prostate gland. Through this passes our urinary passage. Our urinary passage then meets the common urinary passage, which then passes through the penis of the males. So, first and foremost thing, prostate is present only in males. It is a male reproductive organ. Females do not have the prostate gland. So, prostate related issues or prostate cancer, everything will occur only in males. It is a male reproductive gland. Now, what is, as I have already told you, prostate is a reproductive organ. Its growth is dependent on testosterone, the male hormone. As we attain the puberty, the prostate starts functioning. The function of the prostate is to give certain secretions, certain chemicals which are part of the semen. So part of the semen is formed in this prostate gland, which then helps in further reproductive process when the semen enters into the female vagina. So this prostate gland is a reproductive organ present only in the male. It is present just below the urinary bladder, through which passes in the center of the gland, passes our urinary passage. Now, what we will discuss about prostate related symptoms. Every male has a prostate gland. Every male, the prostate gland will start increasing in size. There will be stromal and epithelial changes occurring in the prostate gland because of the aging process. The growth of the prostate gland or the benign prostatic enlargement or BPH is a aging process. It's just like graying of the hairs. So जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जो एजिंग प्रोसेस है, तो द ग्रोथ ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड इज अ एजिंग प्रोसेस. आफ्टर 40 इयर्स, जैसे औरतों में पीरियड आना बंद हो जाता है, मेनोपॉज आता है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस, वैसे ही पुरुषों में बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बढ़ने लगती है. ये प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बढ़ने के कारण पेशाब का रास्ते में हमको कुछ सिम्टम्स महसूस होते हैं. ये वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट आर दिस सिम्टम्स. ये जो सिम्टम्स है, ये यूरिन रिलेटेड सिम्टम्स है जो प्रोस्टेट की ग्लैंड की साइज के अनुरूप नहीं रहते हैं. व्हाट आई मीन टू से इज
द ग्लैंड साइज, द अल्ट्रासाउंड में जो हमें ग्लैंड का साइज बताया जाता है और हमारे जो सिम्टम्स है, दोनों के बीच में डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं रहता। जैसे कि अगर किसी पे पेशेंट का प्रोस्टेट का ग्रंथि 100 ग्राम का है, वह उसमें भी यह पॉसिबल है कि उसको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, और किसी किसी पेशेंट का ग्रंथि का साइज अगर सिर्फ 20 ग्राम्स का है, फिर भी उसको मैक्सिमम सिम्टम्स हो सकते हैं, या फिर उनका यूरिन पूरी तरह से बंद हो सकता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज आप जब भी अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें आपका ग्रंथि का साइज 30 ग्राम्स, 40 ग्राम्स, 50 ग्राम्स जितना भी दिया गया हो, तो ग्रंथि का साइज और आपके प्रोस्टेट के सिम्टम्स के बीच में रिलेशन नहीं है। कभी कभार हमें ऐसा कभी कभार ऐसे कोरिलेशन मिल भी सकता है, कभी कभी कोरिलेशन नहीं भी मिल सकता। ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि हमारा ग्लैंड का साइज बड़ा है तो हमारा पेशाब रुक जाएगा, या फिर हमें प्रोस्टेट का कैंसर हो जाएगा, या फिर हमें प्रोस्टेट रिलेटेड सिम्टम्स होंगे। ग्लैंड का साइज डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं करता है। ग्लैंड का साइज जो अल्ट्रासाउंड का जो लिमिटेशन है उस पर भी डिपेंड करता है। बट इन जनरल हम अगर 50 साल के बाद सीरियली अगर अल्ट्रासाउंड करेंगे तो ग्रेजुअली प्रोस्टेट का ग्रंथि बढ़ते रहेगा। द साइज ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड विल स्टार्ट increases in size after the age of 50 years। अभी इसके कारण हमें प्रोस्टेट के क्या क्या सिम्टम्स मिल सकते हैं। प्रोस्टेट के जो सिम्टम्स है वो हम अभी एक बाद एक डिस्कस करेंगे। किसी को सिम्टम्स जो रहते हैं वो किसी को 10% रहते हैं, किसी को 20% रहते हैं, किसी को 50% रहते हैं, किसी को 100% रह सकते हैं। सिम्टम्स क्या क्या रह सकते हैं? फ्रीक्वेंसी, जो नॉर्मल हमारी फ्रीक्वेंसी रहती है वो दिन में 4 से 6 बार और रात में 0 से 1 बार नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट की जो फ्रीक्वेंसी रहती है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी इज 4 to 6 times in a day and 0 to 1 at night time each void। हर बार हम जब भी पेशाब जाते हैं तभी 300 से 400 ml यूरिन पास करते हैं। नॉर्मल इंसान में डे टाइम में 4 से 6 बार और नाइट टाइम में 0 to 1 बार वो यूरिन पास करता है, और ये हर एक बार वो 300 से 400 ml यूरिन पास करता है। नॉर्मली प्रोस्टेट के कारण ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, आपको बार बार जाना पड़ता है, घंटे घंटे में जाना पड़ता है, रात को बार बार उठना पड़ता है जिसको हम नॉक्चूरिया भी कहते हैं। अगर रात को 2 बार से ज्यादा उठना पड़े, नींद खराब हो, जिसको नॉक्चूरिया कहते हैं, वो भी एक प्रोस्टेट का सिम्टम है। उसके अलावा अर्जेंसी इज लाइक व्हेन यू कैन नॉट होल्ड और व्हेन यू कैन नॉट कंट्रोल द अर्ज टू पास द यूरिन। जब भी आप अपनी अर्ज को या फिर पेशाब का पास करने की जो फीलिंग है उसको रोक नहीं पाते, उसको अर्जेंसी बोलते हैं। अगर आप रोक नहीं पाते हैं और लीकेज होता है तो उसे अर्जेंसी इनकंटिनेंस बोलते हैं। अर्जेंसी और अर्जेंट इनकंटिनेंस प्रोस्टेट के इरिटेटिव सिम्टम्स में शामिल किया गया है। नेक्स्ट सिम्टम इज स्टोरेज रिलेटेड सिम्टम्स और द आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन सिम्टम्स। स्टोरेज रिलेटेड सिम्टम्स क्या है? स्ट्रेनिंग मतलब पेशाब में जोर करना। इफ यू नीड टू स्ट्रेन व्हाइल पासिंग द यूरिनेशन। सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट वॉइडिंग, पेशाब का पूरा साफ ना होना। पुअर फ्लो, धार का नहीं बनना, पेशाब का धार एकदम कमजोर रहना या फिर पूरा लंबे नहीं जाना। इसके अलावा हेजिटेंसी मतलब जब भी आप स्टार्ट करते हैं यूरिन, तभी यूरिन का स्टार्ट जल्दी से ना होना। आपको टॉयलेट में थोड़ी देर रुकना पड़ता है, उसके बाद यूरिन का फ्लो स्टार्ट होता है, उसे हेजिटेंसी बोलते हैं। तो ये सब हमारे सिम्टम्स रहते हैं, प्रोस्टेट रिलेटेड सिम्टम्स, जिसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। The symptoms are divided into 2 parts. They are irritative symptoms, which are frequency, urgency, nocturia, urgency, incontinence, and the storage symptoms. Storage symptoms include poor flow, intermittency, straining, sensation और incomplete evacuation। अभी ये जो भी प्रोस्टेट रिलेटेड सिम्टम्स है जो हम लोग बिनाइन या फिर कैंसर कंडीशन में कभी कभी देखते हैं, उसको हम एक स्कोर करते हैं, जो हर एक पेशेंट को ये स्कोरिंग सिस्टम दिया जाता है। ये स्कोरिंग सिस्टम है 0 to 35 का। इसको IPSS स्कोरिंग सिस्टम बोलते हैं या फिर प्रोस्टेट का स्कोरिंग सिस्टम बोला जाता है। होप दिस इज विजिबल टू यू।
नाउ अभी जब भी हम लोग हर एक पेशेंट में स्कोरिंग सिस्टम करते हैं, तो ये स्कोर का जो है वो 0 to 5 हर एक हमारे जो भी हमने 7 सिम्टम्स डिस्कस किए, वो 7 सिम्टम्स को 0 to 5 का स्कोर दिया जाता है। पेशेंट हर एक स्कोर पे टिक मार्क करते हैं और जो टोटल स्कोर आउट ऑफ 35 बनता है, उसके बेसिस पे हम लोग पेशेंट के सिम्टम्स को स्कोर करते हैं कि पेशेंट को कितने सिम्टम्स है, पेशेंट को माइल्ड सिम्टम्स है, मॉडरेट सिम्टम्स है या सीवियर सिम्टम्स है। अगर पेशेंट का स्कोर 0 to 7 है तो माइल्ड कैटेगरी में आते हैं, 8 to 20 है तो मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं, अगर 20 to 35 के बीच में है तो सीवियर कैटेगरी में आते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन दैट हम लोग उनको दवाइयाँ, मेडिसिन या फिर सर्जरी जो भी है वो एडवाइस करते हैं। नाउ प्रोस्टेट क्यों बढ़ता है? मैंने पहले भी बताया है कि प्रोस्टेट का बढ़ना जो है वो एजिंग प्रोसेस है। इट इज अ एजिंग प्रोसेस। द कॉज इज नेचुरल एजिंग प्रोसेस. Some of the correlation, there are some of the correlations with the obesity. जाना गया है कि ओबेसिटी है, वजन मोटापा है तो प्रोस्टेट के सिम्टम्स ज्यादा रहते हैं। कई मुझे पेशेंट्स आके पूछते हैं, सर मास्टरबेशन करने से प्रोस्टेट बढ़ता है? जी नहीं, उससे डायरेक्ट कोई रिलेशन पाया नहीं गया है। वासेक्टोमी या नसबंदी करने से प्रोस्टेट के सिम्टम्स बढ़ते हैं? नहीं, उसमें भी कोई डायरेक्ट संबंध पाया नहीं गया है। कोई विटामिन डेफिशिएंसी से सिम्टम्स प्रोस्टेट के बढ़ते हैं? जी नहीं, कोई भी विटामिन डेफिशिएंसी से डायरेक्ट प्रोस्टेट का कोई सिम्टम्स नहीं पाया गया है। फैमिली हिस्ट्री, जी हाँ, फैमिली हिस्ट्री में प्रोस्टेट के सिम्टम्स पाए गए हैं। अगर आपके फैमिली में किसी को प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ है या प्रोस्टेट रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है तो डेफिनेटली फैमिली हिस्ट्री रहती है। अगर आपके फैमिली में प्रोस्टेट के सिम्टम्स है तो आपको भी प्रोस्टेट के सिम्टम्स रहने की संभावना रहती है। उसके अलावा अल्कोहल पीने से क्या प्रोस्टेट के सिम्टम्स बढ़ सकते हैं? हाँ जी हाँ, अगर आपका अल्कोहल इंटेक, नाइट टाइम अल्कोहल इंटेक ज्यादा है तो फिर आपको नाइट टाइम फ्लूइड इंटेक बढ़ने के कारण नाइट टाइम आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ सकती है। नाइट टाइम आपको बार बार जाना पड़ सकता है, या तो फिर अंडर द इन्फ्लुएंस होने के कारण अगर हैवी ड्रिंकिंग हो जाती है तो आपको यूरिन रुकने की या यूरिनरी रिटेंशन होने की संभावना रहती है। लिवर डिजीज के कारण क्या प्रोस्टेट के सिम्टम्स बढ़ते हैं? जी नहीं, कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है लिवर डिजीज और प्रोस्टेट के बीच में। हाइपरटेंशन और कोई प्रोस्टेट के रिलेटेड सिम्टम्स है, डायरेक्ट कोरिलेशन तो नहीं पाया गया है, पर इन जनरल अगर हाइपरटेंशन और कार्डियक कोमोर्बिडिटीज कंट्रोल में है तो प्रोस्टेट के सिम्टम्स भी कंट्रोल में रहते हैं। हाइपरटेंशन, बहुत बार हाइपरटेंशन के लिए डायूरेटिक्स, जो पेशाब का फ्लो बढ़ाने वाले ड्रग्स दिए जाते हैं जिससे बॉडी का एक्स्ट्रा जो वाटर है वो बाहर फेंकते हैं, इससे यूरिन आउटपुट हमारा बढ़ता है, तो इसके रिलेटेड इसके लिए भी हमारे प्रोस्टेट के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू विद वन ऑफ द example. Suppose you have a cardiac disease, suppose your doctor or cardiologist has prescribed you a medicine which is a diuretic drug which throws out extra water from your body. अभी जो ये एक्स्ट्रा वाटर है, जो भी आपका एक्स्ट्रा 1 लीटर और 1.5 to 2 लीटर जो भी आपका एक्स्ट्रा वाटर है वो यूरिन के द्वारा बाहर निकलता है। जो जब भी आपका जो एक्स्ट्रा यूरिन बढ़ता है, नॉर्मल आपका यूरिन का जो नॉर्मली यूरिन का आउटपुट है वो 1.5 to 2 लीटर रहता है। अगर आपका उससे भी ज्यादा यूरिन आउटपुट अगर 3 लीटर 3.5 लीटर तक बढ़ जाता है तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, आपको बार बार जाना पड़ता है, आपको पूरा पेशाब पूरा खाली करने में दिक्कत आ सकती है, इनकम्प्लीट वॉइडिंग हो सकता है, या फिर कभी कभी पेशाब का फ्लो पूरा रुकने की संभावना रहती है बिकॉज ऑफ दिस डायूरेटिक ड्रग्स. So we certain times we have seen the patients who are on diuretic drugs and suddenly they have went into the retention. तो जी हाँ, वन ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है आपके जो भी यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो डायरेटिक ड्रग से बढ़ सकती है। स्मोकिंग, डायरेक्ट कोरिलेशन ऐसे स्मोकिंग और प्रोस्टेट का कोई पाया नहीं गया है, बट स्मोकिंग और प्रोस्टेट का कोई डायरेक्ट कोरिलेशन पाया नहीं गया है। नाउ अभी हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो विल डिस्कस ऑन दैट। इन्वेस्टिगेशंस में डॉक्टर आपको आपके जो भी आपके सिम्टम्स है उसकी पूरी जानकारी लेंगे। हम आपको आईपीएसएस स्कोर ट्रैक करेंगे, वो स्कोर के हिसाब से आपके जो सिम्टम्स है वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, उसके हिसाब से हम आपको डिस्टिंग्विश करेंगे। इन ईच कैटेगरी वी विल डिवाइड if your symptoms are mild, moderate or severe. Depending on those symptoms, we will give you certain medicines. We will ask you to we will give certain drugs to relax your bladder
to control your frequency. We will give certain drugs which will open up the urinary passage. आपका urinary passage open up करेंगे और आपको यूरिन का जो फ्रीक्वेंसी है वो कंट्रोल, यूरिन का जो फ्लो है वो बढ़ाने में मदद करेंगे, फ्रीक्वेंसी कम करने में मदद करेंगे, आपका जो पोस्ट वर्ड रेसिड्यू रहता है उसमें हेल्प करेंगे. सो मेडिसिन का जो है वो मेडिसिन से जो डिपेंडिंग अपॉन आपका जो भी ग्रेड ऑफ द आपका जो भी क्लास है, माइल्ड सिम्टम्स है, मॉडरेट सिम्टम्स है, सीवियर सिम्टम्स है, डिपेंडिंग अपॉन दैट हम आपको मेडिसिन देते हैं. अल्ट्रासाउंड का क्या रोल है? अल्ट्रासाउंड हेल्प्स अस इन जजिंग द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज. अभी आप इफ द पेशेंट हैज वेरी सिवियर प्रोस्टेट रिलेटेड सिम्टम्स, the ultrasound will help us in whether patient is having back pressure changes. अगर patient को किडनी में swelling है because of the high post-void residue, आपका अगर यूरिन पूरा खाली नहीं होता है, post-void residue बहुत ज्यादा है, अगर आपको बैक प्रेशर चेंजेस, किडनी में सूजन की कोई संभावना है, कोई स्टोन वगैरह है क्या, यूरिन में ज्यादा यूरिन का जमा अंदर हो रहा है क्या, ये सब चीजें हमें अल्ट्रासाउंड से पता चलती है. अल्ट्रासाउंड विल टेल अस swelling in the kidneys, whether any stones are present in the bladder, whether any mass और कोई गठान वगैरह present है क्या, और कितना post void residue है. Normally post void residue जो रहता है वो less than 1/3 of the total bladder capacity रहता है. The post void residue which is less than 1/3 of the total bladder capacity can be considered as a normal. लेकिन अगर आपका post void residue more than 1/3 है, अगर आपकी total bladder की capacity समझो 300 ml है और उससे 1/3 से ज्यादा है और 100 से ज्यादा अगर रुक रहा है, तो वो यूजुअली आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. तो अल्ट्रासाउंड. फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या करते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर आपको चेक करेंगे, आपके यूरिन के पैसेजेस चेक करेंगे, आपके पेनिस पे जो फोरस्किन है वो whether it is completely retractile or not, whether you have a phimosis, doctor will check your urinary openings. They will also check whether you have the hernia as a side effect of जब भी आप एक्स्ट्रा स्ट्रेन करते हैं तो हर्निया होने की संभावना रहती है, तो डॉक्टर विल चेक वेदर हर्निया है कि नहीं है. Also digital rectal examination is most crucial in prostate examination. Doctor will insert a finger through your anal passages. Doctor will insert a finger and will try to feel the prostate gland through anal passages. A doctor will try to feel the prostate gland, whether any cancerous nodules or any swelling or any tenderness is there in the prostate region or not. So what we as a urologist try to do is what we urologists try to do, we try to feel the prostate gland and we judge whether any nodules, any swelling, any tenderness is there or not by digital rectal examination. So doctor will do in a every elderly male patient, doctor will do at least once a year digital rectal examination to feel for the prostatic nodules or to diagnose or as a screening process for the prostate cancer. मेडिसिन में डॉक्टर, जैसे मैंने बताया है कि डॉक्टर्स विल ऑलवेज गिव स्टार्ट विद द मेडिसिन. आपको मेडिसिन से यूरिन का फ्लो बढ़ाने के लिए हेल्प करेंगे. इफ द पेशेंट इज हैप्पी विद द मेडिसिन, वी कैन कंटिन्यू द मेडिसिन फॉर एटलीस्ट 3 to 6 months ड्यूरेशन एंड देन वी रीइवैल्यूएट द पेशेंट कि पेशेंट के सिम्टम्स कैसे हैं, पेशेंट का फ्लो इम्प्रूव हुआ है नहीं हुआ है, पेशेंट का पोस्ट वॉइड रेसिड्यू कितना है, जो लेफ्ट ओवर यूरिन है वो कितना है. We judge the post-void residue and then depending upon that we ask the patient to continue the medicines or stop the medicines. The patients can, if patient is happy with the medicines, patients can continue medicines lifelong. There are very less side effects with this prostatic medicines. He can continue for lifelong. There are no major cardiovascular or any bodily side effects are present. These medicines help in opening of the urinary passages. Also, they help us in decreasing the prostate gland volume by at least 10 to 30%. prostate gland का size जो रहता है 10 to 30% decrease करने में helpful है.
दिस मेडिसिन का डिवीजन मैं बताऊंगा, जैसे दे आर अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर्स आर द रिलैक्सिंग ड्रग्स जो प्रोस्टेट का जो रास्ता है उसे रिलैक्स करते हैं और यूरिन का फ्लो बढ़ाते हैं। 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स जो रहते हैं वो प्रोस्टेट में टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन जो रहता है प्रोस्टेट में टेस्टोस्टेरोन टू डाइहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन वो कम करते हैं, जिससे प्रोस्टेट का ग्लैंड रिड्यूस होने में मददरूप होता है। इसके अलावा ब्लैडर की जो रिलैक्सेंट ड्रग्स है, ब्लैडर के रिलैक्सेंट ड्रग्स को हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स बोलते हैं एंड बीटा 3 एड्रिनर्जिक अगोनिस्ट ड्रग्स बोला जाता है। तो दिस ड्रग्स हेल्प इन रिलैक्सेशन ऑफ ब्लैडर टू कंट्रोल द इरिटेटिव सिम्टम्स। हमारे जो अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, जो इरिटेटिव सिम्टम्स रहते हैं वो कंट्रोल करने में एंटीकोलिनर्जिक्स एंड बीटा 3 अगोनिस्ट ड्रग्स जो रहते हैं, solifenacin, deriphenoxin and mirabegron, these three drugs help in controlling the irritative symptoms. Now once the patient is started on medicines, what other tests the doctor can do? Doctor will do urine routine test. यूरिन रूटीन टेस्ट से हमें मालूम पड़ता है कि वेदर दिस इन्फेक्शन जो कोई यूरिन इन्फेक्शन का कंपोनेंट तो नहीं है, बिकॉज ऑफ द लेफ्ट ओवर यूरिन। इफ द लेफ्ट ओवर यूरिन इज वेरी हाई, देयर आर हाई चांसेस द पेशेंट may get urinary infection, or whether your symptoms are because of urinary infection। यूरिनरी इन्फेक्शन के कारण अगर सिम्टम्स है तो डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स भी ऐड करेंगे। इसके अलावा कभी कभी डॉक्टर्स आपको यूरोफ्लोमेट्री और यूरोडायनेमिक टेस्ट भी सजेस्ट कर सकते हैं। यूरोफ्लोमेट्री जो टेस्ट रहता है, यूरोफ्लोमेट्री जो रहता है वो फ्लो ऑफ द यूरिन को टेस्ट करता है। अगर आपका फ्लो जो आपकी फ्लो की मात्रा कितनी है, 15 ml per second, 10 ml per second, 5 ml per second, डिपेंडिंग अपन आपकी जो फ्लो की रेट है उससे हम जज करते हैं कि आपके सिम्टम्स की सीवियरिटी कितनी है। नॉर्मली एडल्ट मेल में जो फ्लो है वो 15 या 15 से ज्यादा रहता है। अगर आपका फ्लो 10 से कम है, 5 से कम है, तो आपको प्रोस्टेट रिलेटेड सिम्टम्स जो है उसकी सीवियरिटी तय होती है और डिपेंडिंग ऑन दैट वेदर यू एक्चुअली नीड अ सर्जरी, वो हमें डिसीजन लेने में हेल्पफुल रहता है। यूरोडायनेमिक टेस्ट से हमें क्या पता चलता है? यूरोडायनेमिक टेस्ट से हमें ब्लैडर का पावर पता चलता है, वेदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल पावर है ब्लैडर का वो ज्यादा है, कम है, वेदर जो आपके सिम्टम्स है वो प्रोस्टेट से रिलेशन है या फिर कोई नर्व्स का कंप्रेशन के कारण आपको ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं। तो इट हेल्प्स इन जजिंग द न्यूरोलॉजिकल केसेस जो रहते हैं, स्पाइन रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, नर्व्स के जो केसेस रहते हैं, किसी को स्ट्रोक के पेशेंट रहते हैं, ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स रहते हैं, ये सब पेशेंट्स में हमें यूरोडायनेमिक जो टेस्ट रहती है तो वो हमें डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं। इट हेल्प्स अस इन we want to whether all those symptoms of the lower urinary tract symptoms are because of the prostate gland or those symptoms are there because of the neurological causes। तो यूरोडायनेमिक टेस्ट से हमें पता चलता है कि वो न्यूरोलॉजिकल कॉजेज से है कि प्रोस्टेट रिलेटेड ग्लैंड के कारण है। यूरोडायनेमिक टेस्ट ऑपरेशन से पहले भी कभी कभी या फिर ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं। आपको ऑपरेशन की प्रोस्टेट का ऑपरेशन जो हम करते हैं उससे कितना फायदा होगा, ये भी जजमेंट लेने के लिए यूरोडायनेमिक टेस्ट किया जाता है। ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन जो है अभी पूरा एंडोस्कोपिक मेथड से होता है। एंडोस्कोपिक मेथड से हम लोग यूरिन के पैसेज से जाके हमारे इंस्ट्रूमेंट जाके आपका जो प्रोस्टेट का ग्लैंड है उसको हम लेजर से we widen up the passages, we widen up the urinary passages। जो प्रोस्टेट के जो चिप्स रहते हैं वो चिप्स निकाल देते हैं। There are multiple methods, multiple endoscopic methods available, multiple energy sources are available for this prostate gland related surgeries। सपोज आपको डॉक्टर में सजेस्ट यू TURP, इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं। द प्रोसीजर इज सेम, we insert our resectoscope through the penis area, we reach up to the prostate gland and then we start resecting the prostate gland। जो भी extra gland है जो यूरिन के पैसेज को ब्लॉक करता है हम उसको कट करके निकाल देते हैं। तो दिस इज द एंडोस्कोपिक मेथड, स्टिचलेस प्रोसीजर।
यूजुअली 3 to 5 डेज का एडमिशन रहता है। इससे हम प्रोस्टेट के जो प्रोस्टेट का पैसेज है उसको वाइडन अप करते हैं एंड इट हेल्प्स अस इन ओपनिंग अप द यूरिनरी पैसेजेस। अगर आपके डॉक्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं तो उसको TURP बोला जाता है। अगर लेजर एनर्जी यूज करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा लेजर यूज करते हैं, हॉल्मियम लेजर या थुलियम लेजर, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हम हॉलेप या थुलेप प्रोसीजर्स को कहा जाता है। एडमिशन का समय 3 से 5 दिन रह सकता है। ऑपरेशन के बाद आपको 3 से 5 दिन कैथेटर रह सकता है। ऑपरेशन के बाद पेशाब से ब्लीडिंग हो सकता है, बुखार आने की संभावना रह सकती है। ऑपरेशन के बाद बहुत सारे पेशेंट्स को सीमन ना आने की शिकायत भी रह सकती है। सीमन या फिर धातु ना आने की शिकायत मेडिसिन से भी रह सकती है। उसका कारण यह है कि हमारे जो यूरिन का ब्लैडर का जो नेक है, वो नेक हम लोग दवाइयों से टेम्पररी ओपन करते हैं, मसल्स को रिलैक्स करते हैं और जब भी सर्जरी करते हैं उससे वो परमानेंटली ब्लैडर नेक ओपन हो जाता है। ब्लैडर नेक ओपन होने के कारण जब भी सीमन का डिस्चार्ज होता है तभी वो ब्लैडर नेक क्लोज नहीं हो पाता। इसके लिए वो सीमन आगे आने की जगह पीछे ब्लैडर में चला जाता है, तो इसे हम रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन कहते हैं। ये साइड इफेक्ट है। अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन कॉमन है। आपको दवाइयों से टेम्पररी रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो सकता है। अगर आपकी सर्जरी हुई है तो एटलीस्ट 50% चांस है कि आपको परमानेंट रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो पाए। ये वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स है, बट आपके टाइटनेस में या इरेक्शन में इसका कोई भी असर नहीं होता है। आपकी सेक्सुअल लाइफ में इसका असर होने की संभावना नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ आपको एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर या ऑर्गेजम के समय आपको सीमन का डिस्चार्ज आंखों से दिखेगा नहीं, बाकी आपको ऑर्गेजम फील भी होगा, टाइटनेस भी रहेगा। तो ये मिथ्या है कि प्रोस्टेट की सर्जरी करवाने से सेक्स लाइफ खत्म हो जाती है। ये मिथ्या है, ये गलत अफवाह है। प्रोस्टेट की सर्जरी कराने से सेक्स लाइफ खराब नहीं होती। प्रोस्टेट की सर्जरी कराने से जो साइड इफेक्ट है उसे रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन कहा जाता है। रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है, न कि आपको टाइटनेस या फिर ऑर्गेजम में कोई प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वहाँ की नर्व्स को कहीं भी टच किया नहीं जाता। प्रोस्टेट की सर्जरी के साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, ब्लीडिंग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत बार ये जो आपका पेशाब का जो नली है, ये पेशाब की नली को डैमेज हो सकता है बिकॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। जो पेशाब का पेनिस का जो नली है उसको डैमेज होने की संभावना रहती है, लेकिन उसके जो चांसेस है वो 1 to 5% रहते हैं। उसको हम स्ट्रक्चर यूरेथ्रा बोलते हैं, लेकिन उसके होने के चांसेस 1 to 5% ही है, स्ट्रक्चर यूरेथ्रा। इसके अलावा ऑपरेशन के साइड इफेक्ट्स बोलेंगे तो प्रोस्टेट की ग्रंथि वापस आगे जाके 10 साल के बाद बढ़ सकती है, आपको वापस ऑपरेशन लग सकता है, वापस आपको दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा जो भी मेजर साइड इफेक्ट्स है मैंने आपको बता दिए हैं। आपके डॉक्टर डिपेंडिंग अपॉन आपको करंट क्या सिचुएशन है, आपके जो केस स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस रह सकते हैं। अगर आपका हार्ट कमजोर है या फिर आपको कोई खून पतला करने वाली गोली चालू है, इकोस्प्रिन वगैरह, तो जो केस स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन रहेंगे वो आपको आपके डॉक्टर या आपके यूरोलॉजिस्ट केस स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन हर एक ऑपरेशन से पहले बताएंगे। समझो, प्रोस्टेट के ऑपरेशन होने के बावजूद यूरिन नहीं हो रहा है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। सपोज आपने प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवा दिया है फिर भी आपको यूरिन नहीं हो रहा है, उसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। टेम्पररी ब्लैडर ओवर डिस्टेंट होने के कारण वीक हो गया है, पेशाब के रास्ते में या कहीं पे भी क्लॉट या प्रोस्टेट का कोई चिप फंसा हुआ है, इसके कारण टेम्पररी यूरिन नहीं हो पाता, टेम्पररी यूरिन का इन्फेक्शन है, जो भी है, या फिर आपके पेशाब के थैले की पावर थोड़ी कमजोर हो गई, ये जो भी है वो टेम्पररी कॉजेज रहते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ 2 to 6 months वो पावर रिगेन होने की संभावना रहती है, डिपेंडिंग अपॉन योर एज, योर मोबिलिटी। अगर आप फुल्ली मोबाइल है, आपका यंग एज है, तो ब्लैडर के पावर और आप कोई मेजर न्यूरोलॉजिकल कॉजेज नहीं है तो आपके पेशाब के थैले की पावर वापस आने की संभावना रहती है। अगर आपको पहले से कोई न्यूरोलॉजिकल कॉज है, पहले का कोई स्पाइन सर्जरी हुआ है, पहले की स्पाइन नस का कोई इश्यू है, तो डेफिनेटली पावर वापस आने, ब्लैडर के पावर वापस आने की संभावना कम रहती है। तो ये सब जो वो केस स्पेसिफिक रहते हैं, केस टू केस वेरी करते रहते हैं। हर एक केस का आउटकम अलग रहता है, हर एक का बॉडी अलग रहता है, तो हर एक केस का आउटकम अलग रहता है। डॉक्टर आपको परसेंटेज वाइज आपको समझा पाएंगे कि आपके केस रिलेटेड जो सिम्टम्स है, जो आपके केस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है,
वो आपको आपके यूरोलॉजिस्ट आपके केस स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस आपको समझाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट जो मेरा डिस्कशन का पॉइंट है वो है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर जैसे मैं आपको बताऊंगा, वो यूएस में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है आफ्टर स्किन कैंसर। ग्लोबली फिफ्थ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर जैसे मैंने बताया कि अगर आपको सिर्फ बिनाइन एज रिलेटेड एनलार्जमेंट है, एज रिलेटेड प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट है, तो यूरोलॉजिकल सिम्टम्स रहेंगे। जब भी हमारे पास पेशेंट एज रिलेटेड बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के सिम्टम्स के साथ एज रिलेटेड सिम्टम्स के साथ फॉलोअप करते हैं, तो हम ईयरली साल में एक बार हम 2 स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। ये दोनों स्क्रीनिंग टेस्ट है, एक है सीरम पीएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन और दूसरा है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। ये 2 स्क्रीनिंग टेस्ट से हम प्रोस्टेट का कैंसर स्क्रीन करके जल्दी जांच के द्वारा जल्दी पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एक ब्लड टेस्ट है जिसका नॉर्मल लेवल इंडियन मेल्स में 0 to 4 है नैनोग्राम्स पर ml। अगर ये लेवल्स आपके बढ़ते हैं तो आपको कैंसर होने की संभावना रह सकती है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो है उसका बढ़ने के कारण सिर्फ कैंसर नहीं है, वो बहुत सारे कारणों से बढ़ सकता है। वो इन्फेक्शन के कारण बढ़ सकता है। अगर आपका ग्लैंड का साइज बड़ा है, 100 ग्राम 150 ग्राम 200 ग्राम बड़ा है, तो भी आपका पीएसए बढ़ सकता है। आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है तो भी आपका प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन लेवल बढ़ सकता है। नॉर्मली जो इन्फेक्शन के कारण प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन लेवल बढ़ता है वो यूजुअली 6 वीक्स टू 12 वीक्स के दौरान पीएसए के जो लेवल रहता है वो वापस नॉर्मल होने की संभावना रहती है। बट कैंसर के कारण जो बढ़ता है, और अगर डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर जब भी आपको एनल पैसेजेस से प्रोस्टेट का ग्रंथि चेक करेंगे, तभी उनको कुछ नोड्यूल या हार्ड मास या कुछ भी अनयूजुअल फीलिंग होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कॉज वी कैन जज वेदर द पेशेंट इज हैविंग प्रोस्टेट कैंसर और नॉट। डॉक्टर्स को, आपकी यूरोलॉजिस्ट को बाय डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से पता चलता है कि यहाँ पे आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई कैंसर की गठान है या नहीं है। एक बार हमें अगर कुछ डाउटफुल लगता है कि नहीं पेशेंट में गठान होने की संभावना है या फिर ये पेशेंट में कुछ अनयूजुअल फाइंडिंग्स है, तो हम पेशेंट को पीएसए करने की सलाह देते हैं। अगर पीएसए भी बड़ा है और ये डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन का फाइंडिंग भी एबनॉर्मल है, तो हम पेशेंट्स को डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट का एज, पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, हम लोग कुछ टेस्ट पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। उसमें से सबसे पहला टेस्ट है एमआरआई ऑफ द प्रोस्टेट। एमआरआई टेस्ट से हमें पता चलता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई कैंसर के लक्षण है कि नहीं है। उसमें हमें एक पायरेट स्कोर दिया जाता है। डिपेंडिंग ऑन दैट वी जज कि वेदर कैंसर होने की संभावना है या नहीं है। सेकंड टेस्ट जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो प्रोस्टेट बायोप्सी। प्रोस्टेट बायोप्सी भी अगेन टॉयलेट के रास्ते से, इंडिया में मोस्ट कॉमनली टॉयलेट के रास्ते से करते हैं। दूसरा ट्रांसपेरिनियल बायोप्सी है, या स्किन के गोटी के पीछे की जो स्किन है, गोटी के पीछे की स्किन है, वहां से बायोप्सी लिया जाता है, उसको ट्रांसपेरिनियल बायोप्सी बोलते हैं। या फिर ट्रांस एनल बायोप्सी रहता है, जो टॉयलेट के रास्ते से बायोप्सी लिया जाता है। ये दोनों या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से। इंडिया में मोस्ट कॉमन ट्रांस एनल है, तो टॉयलेट की जगह से सुई डाल के हम लोग सोनोग्राफी द्वारा ये प्रोस्टेट के टुकड़े की सुई द्वारा जांच करते हैं। ये सुई द्वारा जो जांच रहती है उसमें हमें पता चलता है कि प्रोस्टेट में कैंसर होने की संभावना है या नहीं है। जो भी उसके रिजल्ट आते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट वी कैन कंक्लूड वेदर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम प्रोस्टेट कैंसर और नॉट। उसके बाद हमें एमआरआई प्रोस्टेट और और हमारे जो ब्लड टेस्ट और जो हमारे रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं, उसमें पीएसए में पैट स्कैन या फिर बोन स्कैन रहता है। ये दोनों स्कैन से हमें पता चलता है कि प्रोस्टेट कैंसर कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है, बॉडी में कहाँ कहाँ पे कितना फैला हुआ है। उससे वजह से हमें और ट्रीटमेंट डिसाइड करने में हेल्पफुल रहता है। ट्रीटमेंट पार्ट में सर्जिकल ट्रीटमेंट रहता है, रेडिएशन थेरेपी रहता है, हार्मोनल थेरेपी रहता है और कीमोथेरेपी रहता है। सर्जरी, अगर आपका प्रोस्टेट का कैंसर लिमिटेड है, प्रोस्टेट के ग्लैंड से लिमिटेड है, कहीं पे बाहर फैला हुआ नहीं है, तो डॉक्टर्स आपको रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी की सलाह देते हैं। ये ब्लैडर का जो नेक का एरिया है, ये वाला एरिया, ये पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड डॉक्टर्स निकाल देते हैं। इसको हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी बोलते हैं। इसके अलावा अगर समझो आपका
फिटनेस नहीं है, आपके हार्ट रिलेटेड इश्यूज है, फिटनेस नहीं है, तो डॉक्टर्स आपको रेडिएशन की सलाह देंगे। रेडिएशन की सलाह में ये भाग में किरणों द्वारा रेडिएशन दिया जाता है, जिससे यहाँ पे जो भी कैंसर सेल है वो कंट्रोल में रहते हैं। इसके अलावा अगर आपका कैंसर पूरी बॉडी में फैला हुआ है, आपको बोन्स में फैला हुआ है, पूरी बॉडी में फैला हुआ है, तो डॉक्टर्स आपको हार्मोनल थेरेपी दे सकते हैं। हार्मोनल थेरेपी में हम जो पेशेंट का जो गोटी रहता है वो सर्जिकली निकाल देते हैं। गोटी निकालने से क्या होता है, बिकॉज ये जो मैंने जैसे बताया, ये प्रोस्टेट ग्लैंड इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसका जो ग्रोथ है वो टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंडेंट रहता है। तो अगर बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम की गई, गोटी निकालने से मात्रा कम की गई, तो आपके जो प्रोस्टेट का ग्रंथि है उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, प्रोस्टेट के कैंसर की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, तो उससे हमें कैंसर को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। तो डॉक्टर्स आपको गोटी निकालने के ऑपरेशन की सलाह दे सकते हैं, या तो फिर सेम टेस्टोस्टेरोन लोअरिंग इफेक्ट हम लोग इंजेक्शन द्वारा अचीव करते हैं। बाहर से इंजेक्शन हम एवरी 3 मंथली इंजेक्शन देते हैं, उससे द्वारा टेस्टोस्टेरोन का जो असर है उसे कम किया जाता है और प्रोस्टेट के कैंसर को कंट्रोल किया जाता है। लास्ट है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी अगर आपको हार्मोनल थेरेपी भी काम नहीं कर रही है तो आपको अबेरेटोरॉन या एंजुलेटामाइड करके कीमोथेरेपी डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं। जब भी हमारे हार्मोन्स को भी रेजिस्टेंट है, हार्मोन से भी रेजिस्टेंट है प्रोस्टेट कैंसर, तो तभी हम ये कीमोथेरेपी का यूज करते हैं। इसके ये ओरल कीमोथेरेपी है। आईवी कीमोथेरेपी भी अगर बहुत फैला हुआ है तो डॉक्सीटैक्सेल बेस्ड आईवी कीमोथेरेपी भी डिपेंडिंग अपॉन मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ओपिनियन, आपके सर्जन के ओपिनियन के अनुसार आपके कैंसर का कौन सा स्टेज है, कहाँ कहाँ पे फैला है, तो वो अनुसार आपके डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे आपको सर्जरी पे जाना है, रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी पे, रेडिएशन थेरेपी पे जाना है, हार्मोनल थेरेपी पे जाना है, कि कीमोथेरेपी जाना है। तो ये 4 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहते हैं प्रोस्टेट कैंसर के लिए। तो आपका जो स्टेज है, आपके इन्वेस्टिगेशन से कैंसर कितना फैला हुआ है, ये सब बेसिस पे डॉक्टर्स आपको डिसाइड करेंगे। नाउ आई एम कंप्लीट विथ माय टॉक। आई एम ओपन टू टेकिंग क्वेश्चंस। इफ एनी क्वेश्चंस आपको है तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम ऑल। Sir, there are questions which I will ask you, sir, on behalf of audience, sir. Can I, sir? बोलिए ना। Sir, what is the normal size of prostate, sir? Normal size of prostate is in adult males में 15 to 20 grams का रहता है, but it may vary, किसी में 10 ग्राम, किसी में 12 ग्राम। अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट बहुत ही ऑब्जर्वर स्पेसिफिक रहता है। आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो रहते हैं वो ऑब्जर्वर स्पेसिफिक है, कौन अल्ट्रासाउंड करता है और मशीन की रिजोल्यूशन कितनी है, कितना है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो नॉर्मली 10 to 15 ग्राम्स या 15 to 20 ग्राम्स का नॉर्मल एडल्ट साइज प्रोस्टेट का रहता है। Sir, there is another question. What are chances that the cancer will spread beyond my prostate, and is it curable, sir? नहीं, डिपेंड, देखिए अभी चांसेस स्प्रेड होने का वो आपके स्टेज पे डिपेंड करता है कि कितना जल्दी डायग्नोस हुआ है। अगर आपका लेट डायग्नोस हुआ है कैंसर, तो फिर हाँ आपके स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा है। क्यूरेबल वंस इट हैज स्प्रेड आउटसाइड द प्रोस्टेट, क्योर का, रेडिकल क्योर का चांसेस कम रहते हैं, बट हम उसको लॉन्ग टर्म कंट्रोल दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म कंट्रोल विद हार्मोनल थेरेपी मिल सकता है। एज द एज एडवांसेस, आपका जितना एज ज्यादा रहता है वैसे प्रोस्टेट कैंसर का जो असर है वो थोड़ा कम रहता है। अगर आपको यंग एज में डायग्नोस हुआ है प्रोस्टेट कैंसर तो वो बहुत ही फेटल रहता है, बहुत ही जानलेवा हो सकता है। बट अगर आपको ओल्ड एज में 70 साल के बाद या 75 साल के बाद अगर प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसकी जो असर रहती है ओल्ड एज में वो कम रहती है। लेकिन वो कौन से स्टेज पे डिटेक्ट हुआ है, जब भी डिटेक्ट हुआ है तभी वो कौन से स्टेज में डिटेक्ट हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो प्रोस्टेट में ही है तो फिर आपको रेडिकल क्योर मिल सकता है। अगर वो प्रोस्टेट के बाहर फैला है तो हम सिर्फ कंट्रोल करने का काम ही कर सकते हैं। Sir, there is another question. If I'm concerned about cost and insurance, then I have some
financial problem, then what will be my diagnosis and treatment according to my financial condition, sir? फाइनेंसिस कभी भी आपका ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं कर पाते हैं. देयर इज ऑलवेज ऑप्शंस अवेलेबल. द व्हाट इज राइट इज मोर इम्पोर्टेंट. जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो लेना इम्पोर्टेंट है. जस्ट बिकॉज फाइनेंसिस नहीं है तो गलत ट्रीटमेंट लेना आई वुड नॉट सजेस्ट. फाइनेंसिस नहीं है तो फिर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके भी क्योर ले सकते हैं. देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस. अगर आपके पास फाइनेंसिस नहीं है तो उसका अंडर द स्कीम्स भी आजकल रेडिएशन मिल रहे हैं. टाटा हॉस्पिटल में या फिर जीसीआरआई में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे अंडर द स्कीम माँ योजना या फिर आपका ज्योतिबा फुले योजना के अंडर स्कीम में भी रेडिएशन मिलता है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जो इलाज है वो अकॉर्डिंग टू द बुक्स, इलाज जो रहता है वो अकॉर्डिंग टू द बुक्स करना चाहिए, ना कि फाइनेंशियल टर्म्स पे कि फाइनेंशियल टर्म्स नहीं है तो कम इलाज करो या फिर कुछ भी इलाज ना करो. ये संभव नहीं है. अगर फाइनेंशियल इश्यू है तो गवर्नमेंट या फिर स्कीम से या फिर टाटा में हर जगह पे इलाज संभव है. Sir, another question. What are different type of radiation therapy and which is the best therapy, sir? Radiation therapy. What's the therapy? What are the types of radiation therapy among those which are Types the of best? radiation therapy for the general people, I don't think they will understand the much. There are multiple radiation therapies available. उसके cycles रहते हैं. Weekly 5 days a week रहता है. Then for 5 to 6 weeks. And हर एक का जो per cycle जो dose दिया जाता है वो भी पेशेंट की एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से, प्रोस्टेट के ग्लैंड की साइज के हिसाब से वेरी करते रहता है. तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट पेशेंट का जो एमआरआई फिल्म्स है या फिर पीएसएमए पेट स्कैन का जो रिपोर्ट्स है उसके बेसिस पे रेडिएशन थेरेपी का डोसेस डिसाइड करते हैं. बट नाउअडेज मोस्ट कॉमनली यूजेस इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड जो रेडियोथेरेपी है वो यूज करते हैं. और हर एक पेशेंट में जो डोज है वो वेरी कर सकता है. जो अमाउंट ऑफ रेडियोथेरेपी देना है वो भी वेरी कर सकता है. रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ज्यादा बारे में बताएंगे आपको. Sir, there is one more question. Sir, how can we diagnose at early stage? जैसे मैंने बताया कि अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस करना है तो ईयरली 50 इयर्स के बाद में ईयरली एक बार सीरम पीएसए एंड डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करना है. आई विल रिपीट, ईयरली सीरम पीएसए, सीरम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन साल में एक बार करना है 50 साल की उम्र के बाद. और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जैसे मैंने बताया डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट के पास जाके प्रोस्टेट ग्लैंड का फिंगर से एग्जामिनेशन करवाना है 50 इयर्स के बाद. ईयरली एक बार, साल में एक बार करना है. ये दोनों चीजों से हमें अर्ली डायग्नोसिस करने में मदद रूप होता है. सीरम पीएसए एंड डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन. Thank you, sir. There is no other question, sir. Thank you. Okay, thank you for the time. I would like to thank you my partners for the giving me this opportunity for this prostate related men ki health, men ki baat talk. Thank you very much. I would also share my details with you. I practice in Mumbai suburban regions. If you have any doubt, you can surely visit me at my clinic. Thank you, everyone. I'd just like to share my details. I've already shared. The IT people will also share my details. Thank you.